السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز طلاب، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت کتاب التوحید کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ کتاب التوحید یہ معالی الشیخ العلامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے لکھی ہے، اور جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل کشمیر نے وسیع پیمانے کے ایک تحریری تقابلی پروگرام میں اس کتاب کو بطور سلیبس مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس پروگرام میں حصہ لینے والے جملہ و طلباء و طالبات کے لیے خاص طور پر اور عوام الناس کے استفادہ کے لیے عام طور پر اس کتاب کو کچھ لیکچرز کی صورت میں طلباء و طالبات کے لیے پیش کرنے کی میں سعادت اس وقت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل کے صدر تحصیل ہمارے مکرم برادر شبیر صاحب کے مطالبہ پر میں یہ ویڈیو لیکچرز آپ سبھی معزز طلباء و طالبات کے لیے تیار کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالی آپ سبھی طلباء و طالبات کو جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، آپ کو اس کی کامیابیوں سے نوازے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کی کامیابیوں سے بھی نوازے۔ چونکہ کتاب آپ کے سکرین پر نمودار ہو رہی ہے، کتاب التوحید تالیف ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ۔ کتاب کے شروع میں ناشر کے کچھ کلمات ہیں، اس کے بعد شیخ مکرم حفظہ اللہ کا ایک علمی مقدمہ ہے جس میں انہوں نے اس کتاب کو لکھنے اور اس میں جو انہوں نے منہج اختیار کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یا عربی میں آپ اس وقت اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے وہی ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ مقدمہ مؤلف: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ راقم سطور کی زیر نظر کتاب علم توحید پر ایک سنجیدہ تالیف ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ بہت ہی آسان و عام فہم اسلوب و زبان کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ یہ علم توحید پر اس کا موضوع ہے، اور یہ آسان و اہم فہم اسلوب میں ہے، یہ اس کی خصوصیت اور اس کا منہج ہے۔ تالیف کے دوران اپنے اسلاف کرام سلفی دعوت تحریک کے علماء اعظام، خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم الجوزیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کے تلامذہ کی کتابوں و تحریروں سے اقتباس و استفادہ کیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کے مصادر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی عقیدہ، خاص طور پر توحید کا علم بہت ہی اہم اور بنیادی ہے۔ یہ اب اس کتاب کے مضمون اور عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کر رہے ہیں مؤلف، کہ اسے سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینا ہمارا اولین فریضہ ہے، اس لیے کہ بندوں کے اعمال کی صحت، یعنی اعمال کا صحیح ہونا، مقبولیت، قبول ہونا اور نفع بخش ہونے کا یہی ایک راستہ ہے، خاص طور پر ایسے وقت اور ماحول میں جہاں الحاد، یہ ایتھیزم جو آج آپ لوگ سن رہے ہیں، ایتھیزم تو یہ الحاد ہے، تصوف، رہبانیت، قبر پرستی اور سنت و شریعت مخالف بدعتوں کی تیز و تند آندھیاں چل رہی ہیں، طرح طرح کی گمراہ کن اور خطرناک تحریکیں اور جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں توحید کو جاننے، توحید کے مطابق عمل پیرا ہونے کی اہمیت بالکل واضح ہے۔
ऐसे जहर आलूद अहद व माहौल में अगर मुसलमान किताब व सुन्नत और सल्फ सालिहीन के अकीदा पर मबनी सही अकीदा से लेस ना हो तो बहुत जल्द ही उन्हें ये गुमराह कुन व फासिद लहरें बहा ले जाएंगी। इन खतरात के पेश नज़र मुस्लिम बच्चों के लिए, ये खास तौर पर ध्यान से देखिए, मुस्लिम बच्चों के लिए किताब सुन्नत पर मबनी सही अकीदा, फिर उसकी तालीम व तलकीन का अहतमाम और इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सदर तहसील ने इस किताब को इस सिलेबस में मुकर्रर करके इस चीज़ का जो है एहतमाम किया है और इस ज़रूरत को अल्हम्दुलिल्लाह समझा है और उन्होंने ये काम जो है अंजाम दिया है। मुअल्लिफ फरमाते हैं ज़ेर नज़र किताब इसराह की एक संजीदा कोशिश है। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही मुअल्लिफ। तो अल्लाह तौफीक से नवाजे जमात अहले दिल जम्मू कश्मीर को और ख़ास तौर पर तहसील नारबल हमारे सदर तहसील मोहतरम शबीर साहब और उनकी जुमला टीम को, जिन्होंने इस किताब को इस सिलेबस में मुकर्रर किया और इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, और अल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन सभी हजरात को अजर अज़ीम और जज़ाए खैर से नवाजे जिन्होंने इनका ताउन किया हो। ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम हैं और ऐसे जो मसलन जो मुकाबला पर मबनी तकाबुली जो इम्तिहानात हैं, ये बच्चों और बच्चों के लिए निहायत ज़्यादा मुफीद हैं और इन पर जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है। लिहाजा इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना, इन पर मुआवनत करना और इस हवाले से उम्मत के नौनिहालों की फ़िक्र दामनगीर होना ईमान की अलामत है, अमल सालेह है। अल्लाह ताला कबूलियत से नवाजे। तो मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह की किताब का पहला बाब शुरू हो रहा है। फरमाते हैं अल बाबुल अव्वल, पहला बाब, अल इन्हिराफु फी हयातिल बशरिया, इंसानी जिंदगी में इन्हिराफ कब से शुरू हुआ। वलम्हा तारीखी अनिल कुफ्र वल इल्हाद व शिरक व निफाक, और इसी तरह निफाक, शिरक, कुफ्र, इल्हाद, इसका एक तारीखी पस मंजर, तारीखी दौर। तो इस बाब में मुअल्लिफ ने कुछ फसूल जिक्र किए हैं, 5 फसलें। पहली फसल में इन्होंने जिक्र किया इंसानी जिंदगी में इन्हिराफ की तारीख क्या है, कब से पैदा हुआ इन्हिराफ। दूसरी फसल है शिरक और इसकी तारीफ और इसकी अकसाम। तीसरी फसल है कुफ्र के बारे में। चौथी निफाक, और पांचवी उसमें कई चीजें हैं जैसे जाहिलियत, फिस्क, जलालत, इर्तिदाद, और इनकी हकीकत क्या है, इनका माना क्या है, और इनकी अकसाम क्या है, और इन चीज़ों के अहकाम क्या है। तो 5 फसलें इन्होंने या 5 फसूल इन्होंने इस एक बाब में जिक्र किए हैं। अल-फस्ल अव्वल, फसल अव्वल, इंसानी जिंदगी में इन्हिराफ, अल इन्हिराफ फी हयात बशरिया। मुअल्लिफ फरमाते अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और उनके लिए रिज़्क़ के तमाम वसाइल मुहैया फरमा दिए हैं ताकि वो यकसू होकर, यकसू यानी इखलास से, यकरो होकर इबादत कर सके। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में फरमाता है, यानी ये जो मुअल्लिफ ने यहाँ पर फरमाया अब इसकी दलील है। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अगर मुअल्लिफ से कोई कहे इसकी दलील क्या है, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न इंस को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। वमा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ना मैं उनसे रोजी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहत है कि ये मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला तो खुद ही सब का रोजी रसां, तवानाई वाला और जोरावर है। नफ्सी इंसानी को अगर उसकी फितरत पर छोड़ दिया जाए, मुअल्लिफ का कलाम है, कहते हैं नफ्सी इंसानी को अगर उसकी फितरत पर छोड़ दिया जाए तो वो जरूर अल्लाह की उलूहियत का इकरार करेगा और उसकी ज़ाती बाबरकत से मोहब्बत करेगा, उसकी इबादत करेगा। यानी अगर इंसान को कोई गुमराह तहरीक अपनी उस गुमराही का शिकार ना करे, अगर इंसान को फितरत पर छोड़ दिया जाए तो जरूर वो फितरत पर होकर के अल्लाह की उलूहियत यानी अल्लाह के बगैर कोई हकीकी माबूद नहीं है इस बात का इकरार करेगा। वो अल्लाह की ज़ात बाबरकत से मोहब्बत करेगा, उसकी इबादत करेगा, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा।
لیکن جب اسے انسان و جنات کے شیطان صفت افراد ورغلاتے ہیں، یعنی جب اس کو اپنی فطرت پر نہیں رہنے دیتے ہیں، اپنی چکنی چپڑی اور پرفریب باتوں سے بہکاتے ہیں، یعنی اسے اپنے ان جادوئی کلاموں سے جو ہے بہکاتے ہیں، تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں۔ غلط دوست، غلط اساتذہ، غلط مرشد جب کسی انسان کے حصے میں آئے تو وہ اس کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ مؤلف فرماتے چونکہ توحید انسانی فطرت میں ودیعت ہے، یعنی اصلاً توحید موجود ہے، اور شرک ایک عارضی و نو وارد چیز ہے۔ شرک عارضی چیز ہے، نو وارد ہے، باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، نو وارد، نئی جو چیز وارد ہوئی ہو۔ فطرت میں اصلاً توحید ہے، فطرت میں شرک نہیں ہے، لہٰذا انسان کو اگر اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو ضرور اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کریں، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطلہ کی طرف التفات نہ کریں۔ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے دلیل ہے، اس بات کی دلیل کہ انسان فطرت پر جو ہے موحد ہوتا ہے۔ فطرتاً انسان مشرک پیدا نہیں ہوتا ہے، موحد پیدا ہوتا ہے۔ اور شرک ایک نئی چیز ہوتی ہے، شرک اصل نہیں ہے، اصل توحید ہے۔ ہر بچہ فطرت پر توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی یا مشرک وغیرہ بناتے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں لہٰذا اولاد آدم کی اصلیت توحید ہے، اولاد آدم کی اصلیت توحید ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے صدیوں تک، صدیوں بعد تک اسلام ہی ان کا دین رہا ہے، اولاد آدم کا دین اسلام رہا ہے صدیوں تک۔ ارشاد ربانی ہے کان الناس امت واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے نبیوں کو ان کی طرح بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ صحیح عقیدہ کی عمارت میں جب اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی صحیح عقیدہ ہی اصل ہے مسلمانوں کی، اور اسلام ہی اصل ہے، صدیوں تک لوگ توحید پر رہے اور فطرت پر ہی لوگوں نے جنم پایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں یہاں حاشیہ میں لکھا گیا ہے، حاشیہ نمبر 3 پر، کہ فطرت کے اصل معنی پیدائش کے ہیں، یہاں مراد ملت اسلام و توحید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش کا وہ مسلمان ہو یا کافر، اسلام اور توحید پر ہی ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے انحراف کہاں سے پیدا ہوا، اس عقیدہ کو لوگوں نے کہاں سے کب سے چھوڑا، اس کی تاریخی کیا وہ تاریخی پس منظر کیا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں صحیح عقیدہ کی عمارت میں شرک و انحراف کی دراڑ پہلی مرتبہ قوم نوح میں پڑی، اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بنایا گیا۔ جب قوم نوح میں شرک وجود میں آیا، نمودار ہوا، تو اس زمانے میں پہلا رسول بھیجنے کی ضرورت پڑی، تو نوح علیہ السلام پہلے رسول مقرر ہوئے۔ ارشاد ربانی ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیانی عہد میں 10 نسلیں گزری، 10 نسلیں، سب کی سب اسلام پر تھی، 10 نسلیں اسلام پر تھی، یعنی قریباً 1000 سال۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ قول قطعی طور پر صحیح ہے، یعنی یہ قول صحیح ہے قطعی طور پر، اس کے ضعیف ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ
सूरह बकरा की मज़कूरा आयत उबई इब्न कअब की किराअत में यूं आई है, फख्तलफू फबअस लहु नबिय्यन। यानी सूरह बकरा की मज़कूरा आयत जो है, उबई इब्न कअब नामी सहाबी की किराअत में ये है, कान नस उम्मतन वाहिदा फख्तलफू फबअस लहु नबिय्यन। और सूरह यूनुस की इस आयत से इस किरात को साबित किया गया है, वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा फख्तलफू। और सब लोग पहले एक ही दीन व तरीका के, यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर उन्होंने इख्तिलाफ पैदा कर लिया। इससे मौसूफ ने यह साबित किया है कि अंबिया किराम की बेइज्जत का सबब इस सही दीन में जिस पर वो कायम थे लोगों का इख्तिलाफ था। यानी अंबिया किराम की बेइज्जत का सबब कौन सी चीज बनी, क्यों अंबिया भेजे गए? क्योंकि लोग जिस दीन पर कायम थे उस पर लोगों ने फिर इख्तिलाफ किया। जैसे कि मुल्क अरब के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे, यहां तक कि आमिर इब्न लुहै अल-खुज़ाई नामी शख्स आया, आमिर इब्न लुहै अल-खुज़ाई नामी शख्स आया और उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को बदल दिया। पूरे अरब में बिलउमूम और खास तौर पर हिजाज में बुतों को लाकर भर दिया। लोग अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की इबादत में लग गए। तो सबसे पहले बुत सरजमीन अरब पर किसने लाए हैं? आमिर इब्न लुहै ने, पूरे अरब में और बिलउमूम और बिलखुसूस हिजाज में। इस तरह इस मुकद्दस शहर और उसके कुर्ब जवार में शिरक फैल गया, यानी मक्का मुकर्रमा और उसके आसपास के इलाकों में शिरक फैल गया। यहां तक कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, मिल्लत इब्राहिमी के इत्तिबा व पैरवी की दावत दी, अल्लाह की राह में भरपूर जो है मेहनत से काम लिया। यहाँ पर देखिए, आपने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा। तो यहाँ इन्होंने लिखा है मिल्लत इब्राहिमी के इत्तिबा व पैरवी की, तो की पढ़ना चाहिए, मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा व पैरवी की दावत दी। यहां तक कि अकीदा तौहीद लोगों की जिंदगी में लौट आया, मिल्लत इब्राहिमी का इहया हुआ, बुत तोड़े गए और अल्लाह ने इस नबी उम्मी के जरिया अपने दीन को मुकम्मल फरमाया और तमाम जहानों पर अपनी नेमत की तकमील फरमाई। और इसी मनहज तौहीद व रिसालत पर इस उम्मत के इब्तिदाई दौर के लोग कायम रहे। फिर आखिरी सदियों में जहालत आम हो गई। ये देखिए, तारीखी पस मंजर बयान कर रहे हैं मुअल्लिफ, किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग इब्राहिमी दीन पर थे, फिर अम्र इब्न लुहै ने जब बुत लाए तो लोग दीन इब्राहिमी से दूर होते चले गए। फिर अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो वापस दीन इब्राहिमी पर लोगों को उन्होंने लाया, बुत तोड़े गए और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने भरपूर जिहाद किया और मेहनत की, अल्लाह की राह में भरपूर जिहाद किया, यहाँ तक कि अक़ीदा तौहीद लोगों की जिंदगी में लौट आया। तो ये सारी चीजें हुई। फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोग दोबारा उस सही दीन से दूर होते चले गए। आखिरी सदियों में जहालत आम होती गई, बहुत से दीगर मज़ाहिब के असरात दाखिल हो गए। फिर जलालत की तरफ बुलाने वालों के करतूत और अवलिया, बुजुर्गों की कब्रों पर पुख्ता इमारतों की वजह से शिर्क व बिदअत उम्मत के बहुत सारे अफराद में आम हो गई। अल्लाह ताला के बजाय बहुत से मुजस्सिमे इबादत के लिए चुन लिए गए, उनकी बारगाह में मिन्नत समाज, दुआ, इस्तिगासा और नज़र नियाज शुरू हो गई। फिर इस तरह के शिरकिया अमल करने वालों ने अपने अमाल की तावील ये की कि ये बुजुर्गों की इबादत नहीं है बल्कि उनसे तवस्सुल और उनकी मोहब्बत का इजहार है। ऐसी तावील करते वक्त ये लोग भूल गए हैं कि पहले के मुशरिकीन की भी अपने शिरकिया अमाल की यही दलील हुआ करती थी, जिनका कहना यह होता था, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो इन लोगों की इबादत इसीलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह का मुकर्रब बना दें, यानी शायद उनके जरिए से हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। इस तरह के शिरकिया अमाल के बावजूद, जिनमें अक्सर लोग हर जमाने में मुब्तला रहे हैं, आमतौर पर मुशरिकों की अक्सरियत तौहीद रुबूबियत की कायल रही है। मुशरिकों की अक्सरियत तौहीद रुबूबियत की कायल रही है।
इनका शिरक सिर्फ इबादत ही में मुनहसर रहा है। अल्लाह का फरमान है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। बनी नौ इंसान में से रब परवरदिगार के वजूद का इनकार बहुत ही कम लोगों ने किया है, और उनमें से जैसे फिरौन, मुल्हिदीन, एथिस्ट्स, दहरीयीन, दहरी यानी दहरी उनको कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद पैदा हुई है, जमाने से सब कुछ होता है, और असर हाजिर के कम्युनिस्ट वगैरह, फिर भी उनके इनकार की वजह हट दर्मी है, वरना अंदरूनी तौर पर ये लोग भी रब यानी परवरदिगार के वजूद के कायल हैं। इसी तरह के लोगों के बारे में अल्लाह ताला का ये इरशाद है, वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्म व उदुवा, और उन्होंने बेइंसाफी और गुरूर में आकर इन बातों से इनकार किया, हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे। इसी तरह के लोगों की अक्ल व आगाही जरूर गवाही देती है कि हर मखलूक का कोई ना कोई खालिक होता है, और हर मौजूद शय के लिए कोई ना कोई मूजिद यानी ईजाद करने वाला होता है, और इस कायनात के इस मुनज़्ज़म व मुस्तहकम निज़ाम को कोई मुदब्बिर, हकीम, बेपनाह कुदरत रखने वाला और हमगिर इल्म रखने वाला चला रहा है। इस बात का इनकार वही कर सकता है जो अक्ल से आरी हो, या ऐसा हट धर्म हो जिसने अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया हो, अपने नफ्स को बेमसरफ बना दिया है, जिसका किसी मामला में कोई एतबार नहीं है। तो मोअज़्ज़ज़ तुल्लाब, यहाँ तक आज का ये पहला दर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आप कुछ दुरूस सुनेंगे इस किताब के हवाले से। तो आज के दर्स में हमने पढ़ा कि किस तरह लोगों में असल तौहीद है, और फिर कैसे इंसानी जिंदगी में इन्हिराफ पैदा हुआ। सबसे पहले 10 सदियां गुजरने के बाद, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फिर 10 सदियों तक, जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, 10 सदियों तक लोग सही दीन पर कायम रहे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से उस दौर में इन्हिराफ पैदा हुआ, शिरक पैदा हुआ, तो नूह को बहैसियत रसूल मबूस किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रसूल भेजे गए, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा में रहने वाले लोग जो दीनी इब्राहिमी पर कायम थे, फिर अम्र इब्न लुहाई ने सबसे पहले वहां बुत लाए, और लोगों ने जब बुत परस्ती शुरू की तो अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। तो उसके बाद उनके सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, कुरून सलासा, जो पहले बुनियादी अजीम 3 तबका थे और पहली बुनियादी 3 अजीम सदियाँ थी, उनमें लोग तौहीद पर रहे, सुन्नत पर कायम रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता बाद के लोगों में, बाद की सदियों में जो है वो जहालत पैदा हुई, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मतलब ताबीन के दौर से ही लेकर के लोग इस दीन से किसी हद तक दूर चले जाते रहे। तो इस तरह से फिर लोगों में दोबारा वो जो है जलालत और गुमराही और इन्हिराफ वगैरह वो फैलता गया। तो कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने रब का इनकार किया, लेकिन अक्सर लोग ऐसे थे जिन्होंने तौहीद रुबूबियत तो मान लिया, लेकिन तौहीद उलूहियत को नहीं माना, यानी अल्लाह को माबूद मानने में उन्होंने कोताही की, माबूद बरहक, बल्कि अल्लाह की इबादत में अल्लाह के साथ शरीक भी किए, जबकि अल्लाह को रब मानने में उन्हें कोई तामुल या कोई इनकार नहीं रहा है। तो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो शिरक और इसी तरह गुमराहियों में और इसी तरह इन्हिराफ में मुब्तला हुए। तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को इस इन्हिराफ से जो है निकाला जाए, शिरक से निकाला जाए, तौहीद की दावत दी जाए, इसके लिए मेहनत की जाए, तालीम आम की जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, लोगों को असल दीन से वाकिफ कराया जाए। तो इसी के लिए मौलिफ रहमहुल्लाह ने ये किताब लिखी है, और शायद यही मकसद है जमात अहले हदीस तहसीलदार बल्कि कि लोगों में एजुकेशन को आम किया जाए, तालीम को आम किया जाए, ताकि लोगों की निगाहें जो है वो पढ़ने और पढ़ाने की तरफ उनकी निगाहें और उनके तवज्जह मरकूज हों, और लोग दीन को खुद यानी इल्म को खुद पढ़ सके, एजुकेशन आम हो, और फिर इंशाअल्लाह ताला जब तालीम आएगी तो अमल की भी तवक्का करेंगे। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने के बाद अमल करने से नवाजे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन तमाम रफ़ाक़ा को अजर अज़ीम से नवाजे जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम मुनाक़द करने में हौसला अफजाई की है और जिन्होंने मुआवनत की है।
अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम से नवाजे। मैं तहसील नारबल का, जमीयत अहले हदीस तहसील नारबल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन लेक्चर्स के लिए जो है मौका दिया है। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर से नवाजे और हम सब को इल्म हासिल करने, इल्म पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्म, तुल्लाब व तालिबात, अल्लाह ताला आप लोगों को भी जज़ाए खैर से नवाजे। वाकई आपने बहुत अच्छा रास्ता इख्तियार किया है, इल्म का रास्ता इख्तियार किया है, एजुकेशन का रास्ता इख्तियार किया है। अल्लाह ताला हमारी जहालत हमसे दूर फरमाए, हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। और आपके वालिदैन मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने आपकी फीस पे की है, जिन्होंने आपको मौका दिया है कि आप किताब पढ़ें, आप किताब से अपना रिश्ता जोड़ें। आप देखते हैं कि आए रोज किताब से लोग दूर होते जा रहे हैं, तो आपका रिश्ता किताब से हो, आपका रिश्ता इल्म से हो। आप पढ़ाई में ध्यान दें, आप एजुकेशन में ध्यान दें। अल्लाह ताला आपको और हमें भी इल्म हासिल करने और इल्म पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। अभी ये मजहबी क्लास है, अभी ये शरई इल्म की क्लास है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम इसी किस्म की तालीम पर उभारेंगे, नहीं तो इसी तरह हम दुनियावी तालीम के लिए भी तालिब इल्म को उभारते रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हमारे समाज को डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, माहिरीन तालीम की भी ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है। तो हम अल्लाह बचाए हमें, हम कोताह बीनी के शिकार नहीं है, हम दुनियावी तालीम से लोगों को मुतनफिर नहीं करते हैं। आप तालिब इल्म हैं, आप में से कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, आप में से कुछ इंजीनियर्स भी होंगे, आप में से कुछ ऐसे तालिब इल्म होंगे जो मेडिकल पढ़ रहे होंगे, जो दूसरे उलूम पढ़ रहे होंगे। तो आप ये ना समझें कि शायद हम गलत कर रहे हैं, नहीं, आपका रास्ता सही है। अगर आपने इल्म का रास्ता चुना है, एजुकेशन का रास्ता चुना है, अल्लाह आपको उस पर कामयाबी से नवाजे। और साथ साथ अगर आप दीनी तालीम का हिस्सा भी हासिल कर रहे हैं, तो अल्लाह आपको कामयाबी और अजर अज़ीम से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।